یونیورسٹی کا پورا دن روز کی طرح بہت مصروف گزرا تھا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرتی باہر نکل آئی تھی۔ دھوپ بہت تیز تھی اور سڑک پر گاڑیوں کا شور ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ تھا۔ میں روزانہ کی طرح بس کے اڈے کی طرف بڑھنے لگی، جہاں پہلے ہی بہت سے لوگ کھڑے اپنی اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کاندھے پر لٹکا بیگ کندھے پر درست کیا اور سڑک کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید اب ہماری باری بھی آ جائے، کہ اس دوران میرے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا فون زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے چونک کر اسکرین پر دیکھا تو وہاں میرے ابا کا نام لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بہت زیادہ حیرانی ہوئی، کیونکہ یہ وقت ابا کے فون کرنے کا بالکل نہیں تھا۔ وہ اس وقت اپنی نوکری پر ہوتے تھے۔ میرے ابا ایک ڈرائیور تھے اور وہ اپنے کام کے دوران کبھی بھی فضول فون کال نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ نوکری کے وقت صرف کام پر دھیان دینا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اس وقت فون آنا میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر گیا۔ میں نے دل کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید کوئی ضروری بات ہوگی، یا شاید ابا نے مجھے گھر جلدی بلانے کے لیے فون کیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور السلام علیکم کہا، لیکن دوسری طرف سے ابا کی جانی پہچانی اور شفیق آواز نہیں آئی، بلکہ ایک بالکل اجنبی شخص کی باری آواز سنائی دی۔ اس شخص نے بہت دھیمے لہجے میں مجھ سے میرا نام پوچھا، اور جب میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اس نے مجھے ایک ایسی خبر دی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے کہا، تمہارے ابا کا ایک بہت بڑا اور خوفناک حادثہ ہوا ہے، اور اس وقت وہ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے تم جتنی جلدی ہو سکے ہسپتال پہنچ جاؤ۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی ہر چیز رک گئی ہو۔ میرے ہاتھ سے کتابیں نیچے گر گئی اور موبائل فون بھی بس چھوٹنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے بس کا انتظار چھوڑا اور پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑنے لگی۔ جو بھی رکشہ سامنے آیا میں اس میں بیٹھی اور روتے ہوئے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے جلدی سے ہسپتال پہنچا دو۔ پورا راستہ میں اپنے آنسو بہاتی رہی اور خدا سے اپنے ابا کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، کیونکہ اس بڑی دنیا میں ابا کے سوا میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ میری ماں تو بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور ابا نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ انہوں نے اپنی غریبی کے باوجود مجھے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھایا تھا تاکہ میں ایک کامیاب انسان بن سکوں۔ جب رکشہ ہسپتال کے سامنے رکا تو میں گرتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ ایک نرس سے ایکسیڈنٹ کیس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اندر ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ سامنے بیڈ پر میرے ابا لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا پورا جسم پٹیوں سے بندھا تھا اور سفید چادر پر خون کے سرخ دبے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہاں مختلف قسم کی مشینیں لگی تھیں جو بہت تیز تیز چل رہی تھی، جن میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ ابا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیم وا تھی اور وہ بہت تکلیف میں نظر آ رہے تھے۔ میں روتی ہوئی ان کے بیڈ کے قریب پہنچی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے ابا نے جیسے ہی میری آواز سنی تو انہوں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں پوری کھولی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بہت زیادہ فکر اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ان کی گرفت میں وہ پہلے جیسی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک باپ کا خلوص اور پریشانی چھپی تھی۔ وہ بہت دھیمی اور اکھڑتی آواز میں بولے، مریم، میری پیاری بیٹی، دیکھو تم نے رونا بالکل نہیں ہے، اور میری بات بہت غور سے سنو، کیونکہ میرے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ مریم، اس دنیا میں میرے جانے کے بعد تمہارا کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں ہے جو تمہارا خیال رکھ سکے۔ تم بالکل اکیلی رہ جاؤ گی، اور یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں تمہیں اس طرح اکیلا اور بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، لیکن میری روح کو تب سکون نہیں ملے گا جب تک میں تمہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں نہ سونپ دوں۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی چاہی ہے، اور آج بھی میں تمہارے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور تمہیں میری یہ آخری خواہش ہر حال میں پوری کرنی ہوگی۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میرا دل پھٹ رہا تھا، اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ ابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بار بار سر ہلا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔
انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور کہا، مریم، میرے سوا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں جانے سے پہلے تمہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ ابا کی یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسپتال کے اس سرد کمرے میں اس طرح اچانک میرا نکاح کسی اجنبی سے کر دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت ابا کی حالت ایسی تھی کہ میں ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی اکھڑتی ہوئی سانسیں مجھے یہ بتا رہی تھی کہ اگر میں نے اس وقت ان کی بات نہ مانی تو وہ ہمیشہ کے لیے افسوس لے کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے سارے خوابوں، اپنی پڑھائی اور اپنی پسند کو ایک طرف رکھا اور روتے ہوئے اپنے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ میرے ہاں کہتے ہی ابا کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو ایک طرف خاموشی سے کھڑا اور اسے اشارہ کیا۔ سارا انتظام بہت جلدی میں کیا گیا تھا۔ وہاں کوئی گواہ نہیں تھا سوائے اسپتال کے اور ایک دو ملازمین کے۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے، لیکن ایک تلخ حقیقت تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے 3 بار پوچھا کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے، اور میں نے اپنے ابا کا چہرہ دیکھ کر بہت بوجھل دل کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے بھی سائن کر دیے اور اس طرح چند ہی منٹوں میں میرا نکاح اس بالکل اجنبی لڑکے سے ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، ابا نے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ کمرے میں لگی مشین کی آواز ایک سیدھی لائن میں بدل گئی، جس کا مطلب تھا کہ میرے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور ابا کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا سب کچھ لٹ گیا ہو اور میں اس دنیا میں بالکل یتیم اور اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ لڑکا خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے ڈاکٹروں کو بلایا۔ اسپتال کے تمام کاغذی کارروائی اس لڑکے نے خود سنبھالی اور ابا کی مٹی کو گڑ لانے کا انتظام بھی اس نے کیا۔ مجھے اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا، میں بس ایک جاندار لاش کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ابا کی تدفین کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے اپنا نام دانیال بتایا۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ مریم، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت اچانک اور تکلیف دہ ہے، لیکن میں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے غصے اور نفرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میرا گھر ہے یہ اور میں یہی رہوں گی۔ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ تم کون ہو اور ابا کی آخری خواہش کا احترام کیا ہے۔ میں نے بس اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شوہر بن کر مجھ پر مسلط ہو جاؤ۔ میرا دل اس لڑکے کے لیے بالکل صاف نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایک عام سا انسان ہے جسے ابا نے بس جلد بازی میں میرے سر ڈال دیا ہے۔ میں نے یونیورسٹی پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کے جو معیار بنائے تھے، یہ لڑکا پورا نہیں اترتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی معمولی نوکری کرنے والا لڑکا ہے جس سے میرے ابا نے احسان کیا ہے۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر کرائے کا ہے تم کب تک یہاں رہ سکتی ہو؟ بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ ویسے بھی تمہیں یہاں اکیلا دیکھ کر کتنے ہی لوگ پریشان کرنے آئیں گے، پھر کیا کرو گی؟ تمہارے ابا نے اسی لیے آخری وقت تمہیں میرے حوالے کیا ہے تاکہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک کہنا تھا۔ اس محلے میں کچھ ایسے اوباش لڑکے بھی تھے جنہوں نے پہلے ہی مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ اب اگر میں بالکل اکیلی یہاں رہتی تو میرے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے میں نے مختصر سا اپنا سامان سمیٹا اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ گاڑی جب ایک علاقے میں رکی تو میں نے باہر دیکھا۔ وہ ایک درمیانے درجے کی بستی تھی جہاں تنگ گلیاں اور چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ دانیال نے گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روکی اور چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارا نیا گھر ہے، تم یہاں آرام کرو۔ میں نے جب اس کے گھر کے اندر دیکھا تو میرا دل مزید کڑوا ہو گیا۔ وہاں صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ گھر میں کوئی قیمتی فرنیچر یا عیاشی کا سامان نہیں تھا، بس ضرورت کی چند چیزیں موجود تھیں۔ دانیال نے مجھے بتایا کہ وہ فی الحال مجھے اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ اس کے کچھ خاندانی مسائل ہیں۔ بس اپنے ماں باپ کو اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا اور وہ نہیں بتانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے اچانک اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے تو اس بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی والدین کو منائے گا اور تب تک مجھے اسی گھر میں صبر کے ساتھ رہنا ہوگا۔
दानियल की बातें सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा और नफरत मजीद बढ़ गई। मुझे लगा ये लड़का ना सिर्फ गरीब और मामूली है, बल्कि डरपोक भी है, जो अपने घर वालों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैंने दिल ही दिल में उससे शदीद नफरत करना शुरू कर दी और फैसला किया कि मैं उसके साथ कभी एक आम बीवी की तरह नहीं रहूंगी। मैंने सोचा, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और एक अनपढ़ और मामूली इंसान है। मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने दानियाल को अपने करीब आने का मौका ही नहीं दिया था। वैसे भी मैं अपने बाप की मौत के गम में डूबी हुई थी, वो भी खामोशी से ही, बस मेरी जरूरतों का ख्याल कर रहा था। अक्सर रात को देर घर से लौटता और मेरे खाने पीने का सामान लाकर रख देता। महीने के खर्च के लिए कुछ पैसे भी देता, लेकिन मैं उन पैसों को हकारत से देखती। मैंने घर का कोई काम करना पसंद नहीं किया था और हमेशा उसके साथ बदतमीजी से पेश आती। जब भी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, मैं उसे झिड़क देती और कहती कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, तुम एक मामूली इंसान हो। दानियल मेरी इन तमाम तलख बातों को खामोशी से सुनता। उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था। वो बस एक गहरी सांस लेता और वहां से हट जाता। उसका ये सब्र मुझे और ज्यादा पागल कर देता था। मैं चाहती थी कि वो मुझ पर चिल्लाए या मुझसे लड़े, ताकि मुझे उससे तलाक लेने का बहाना मिल सके। लेकिन वो जितना मुखलिस और साबिर था, मैं उतनी ही ज्यादा उसके लिए नई मुश्किलात खड़ी करती रहती थी। अब्बा के गुजरे 10 दिन हो चुके थे और इन 10 दिनों में मैंने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। हर वक्त रोते रहने से दिल का बोझ तो हल्का नहीं होता था, और जिंदगी को तो किसी के जीने से जाने से रुक नहीं जाती। इसलिए मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस शाम जब दानियाल घर से काम से वापस आया और सेन में रखी कुर्सी पर बैठा, तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने दानियाल से बिल्कुल साफ और सीधे लफ्जों में कहा कि मैं कल से दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अपनी डिग्री पूरी करनी है। मैंने सोचा था कि वो एक अनपढ़ और मामूली इंसान होने की वजह से मुझे पढ़ाई पर एतराज करेगा या मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर देगा, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल बरअक्स, उसे इस बात का कोई इतराज नहीं था। उसने बहुत नरमी से सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपनी यूनिवर्सिटी के भारी भरकम फीसों के बारे में बताया, तो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच छा गई। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब इसका गरीबाना बजट खराब होगा और ये इतनी बड़ी रकम सुनकर परेशान हो जाएगा, क्योंकि मेरे अब्बा भी अपनी नौकरी को महदूद तनख्वाह में से मुश्किल से मेरी फीस भरते थे, और अब्बा का हाथ बटाने के लिए कुछ पैसे मैं खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जमा करती थी। यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा थी कि आम नौकरी पेशावर इंसान के लिए उसे देना बहुत बड़ा मसला था। दानियल की खामोशी देखकर मेरे चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई, लेकिन वो कुछ देर खामोश रहने के बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मरियम, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र न करो और ना ही परेशान हो। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के तमाम फीस वक्त पर अदा कर दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसका ये जवाब मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा इंसान इतने पैसे कहाँ से लाएगा, लेकिन मैंने ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे तो बस अपनी फीस से मतलब था। हाँ, मैं दानियाल को किसी भी सूरत अपने ऊपर एहसान जताने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसकी हामी के बाद अगले ही दिन मैंने दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। जब मैं पूरे दिन बस यूनिवर्सिटी की रंग बिरंगी दुनिया में वापस पहुंची, तो हर चीज वैसी थी, बस मेरे अंदर का सब कुछ बदल चुका था। मैं जैसे ही मेन गेट से अंदर दाखिल हुई, तो रजा की नजर मुझ पर पड़ी। रजा मुझे देखते हुए दौड़ता हुआ आया और मेरे पास चला आया। उसके चेहरे पर मेरे लिए सच्ची फिक्रमंदी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो मेरे करीब आया और बहुत बेचैन होकर कहने लगा, मरियम, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी? तुम्हारा फोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। अगर मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम होता, तो मैं खुद तुम्हारे घर चला आता। रजा को अपने सामने देखकर और उसकी मोहब्बत भरी बातें सुनकर मेरे जब्त का बंधन टूट गया। मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और दीवाना वार उसके सीने से लगकर जोर जोर से आंसू बहाने लगी। यूनिवर्सिटी का पूरा लॉन लोगों से भरा था, लेकिन मुझे उस वक्त किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस अपने दिल का सारा बोझ हल्का करना चाहती थी। रजा ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा, मुझे तसल्ली दी, और जब मेरा रोना कुछ कम हुआ, तो मैंने उसे रोते हुए अपने अब्बा को अचानक गुजर जाने का बताया कि किस तरह एक हादसे ने मेरे अब्बा को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया है और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अब्बा की मौत की खबर सुनकर रजा को भी बहुत बुरा झटका लगा और वो भी काफी अफसरदा हो गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मरियम, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। रज़ा की इन बातों ने मेरे जख्मी दिल पर मरहम का काम किया और मुझे दानियाल के उस छोटे से किराए के घर के मुकाबले में रज़ा की बातें ज्यादा सच्ची और अपनायत बड़ी लगी। मैं दानियाल को मुखलिस नहीं समझती थी, जबकि रज़ा की हमदर्दी मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा महसूस हो रही थी। मैंने रज़ा को अपने निकाह के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो ये सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं बस उसके करीब रहकर उस दानियाल नामी मुसीबत से छुटकारा पाने के रास्ते सोचने लगी। रज़ा कहने लगा, मरियम, तुम वो अपना पुराना किराए का घर बिल्कुल छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने फ्लैट में जगह देता हूँ। तुम वहाँ अकेले सुकून से रहो। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा और तुम्हें वहाँ किसी भी किस्म की चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। रज़ा की बात सुनकर मैं एकदम से अंदर से घबरा गई, क्योंकि मैं जानती थी कि हकीकत क्या है। मैंने घबराते हुए अपने हाथ पीछे किए और कुछ देर सोचने के बाद रज़ा से कहा, नहीं रज़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी फूफो दूर के शहर में मेरे पास आ गई हैं और मैं उनके साथ बिल्कुल महफूज रह रही हूँ। मुझे किसी फ्लैट की जरूरत नहीं है। मैंने रज़ा से ये बहुत बड़ा झूठ कहा था, क्योंकि मैं उसे किसी कीमत पर ये सच नहीं बता सकती थी कि मेरा निकाह हो चुका है और मैं अपने शौहर दानियाल के साथ उसके छोटे से किराए के घर में रह रही हूँ। मुझे डर था कि अगर रज़ा को मेरे निकाह का पता चल गया तो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और मैं रज़ा को खोना नहीं चाहती थी। मेरी बात सुनकर रज़ा ने बहुत गहरा सांस लिया और कहने लगा, अच्छा चलो, अगर ये बात है तो तुम बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी भी मेरी जरूरत महसूस हो, तुम बिला झिझक मुझे एक फोन कर देना। मैं अपना वो फ्लैट तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम जब चाहोगी वहां जाकर रह सकती हो। बल्कि तुम चाहो तो रोजाना यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद भी कुछ वक्त मेरे साथ वहां गुजार सकती हो। हम वहां एक साथ अच्छे लम्हे गुजारेंगे। रजा ने ये बात कहते बहुत प्यार से मेरे बालों की एक लट को छेड़ा और मेरे बिल्कुल करीब आती इतनी मोहब्बत से ये सब कहा कि मेरे गाल शर्म से सुरख पड़ गए। मुझे रजा का इस तरह मेरे करीब आना और मोहब्बत का इजहार करना बहुत अच्छा लग रहा था। दानियाल के उस छोटे से घर के मुकाबले में मुझे रजा की बात और उसका अंदाज अपने ख्वाबों की दुनिया जैसा लगता था, जहाँ हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मैं रजा की बातों में इतनी खो गई कि उसके दिल ही दिल में दानियाल से और ज्यादा नफरत करने लगी कि उस अनपढ़ इंसान ने मेरी जिंदगी को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था, जबकि रजा मुझे इतनी बड़ी और खुली जिंदगी की ऑफर कर रहा था। रजा की बातों ने मेरे दिल में दानियाल से तलाक लेने की ख्वाहिश को और ज्यादा मजबूत कर दिया और मैं सोच रही थी कि मैं जल्द से जल्द इस बंधन को तोड़कर रजा के पास चली जाऊं। यूनिवर्सिटी से वापसी के बाद मेरा रवैया अपने शौहर के साथ बहुत ज्यादा खराब हो गया था। पहले भी मैं उस छोटे से घर में मेरा दिल न लगने की वजह से मैं कोई काम करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तो मैं उसे बकायदा और बाकायदा तंग करने लगी थी। मेरे दिल में रजा की बातें घर कर चुकी थी और दानियाल की हर चीज मुझे बुरी लगने लगी थी। मैंने दानियाल को ज़हनी अज़ियत देने के लिए रोज़-रोज़ तरीके ढूँढना शुरू कर दिए थे। कभी मैं उसे किसी महँगी चीज़ की डिमांड करती, कभी किसी ऐसी चीज़ की फ़रमाइश कर देती, जो एक आम नौकरी करने वाले इंसान के बस की बात नहीं थी। मैं बाज़ार के महँगे कपड़ों और कीमती सामान के नाम लेकर उसके सामने रख देती, ताकि मेरी इन फ़रमाइश से आजिज़ आ जाए। मगर मुझे बस हर वक़्त एक लम्हे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, जब वो मेरी इन रोज़-रोज़ की डिमांड्स और बदतमीज़ियों से बुरी तरह से तंग आकर गुस्से में मुझे खुद तलाक दे दे और मैं हमेशा के लिए उससे आज़ाद हो जाऊँ। मैं अगर चाहती तो खुद भी उसके मुँह से तलाक का मुतालबा करके कोर्ट जाकर जा सकती थी और इस नापसंदीदा रिश्ते को एक पल के लिए ख़त्म कर सकती थी। लेकिन हस्पताल के उस कमरे में अपने मरते हुए बाप के सामने खा जाने वाली कसम की लाज रखते मैंने खुद से रिश्ता ख़त्म ना करने की ठानी थी। मैं चाहती थी कि रिश्ता इस तरह से खत्म हो कि मैं अपने मरहूम बाप के आगे शर्मिंदा भी ना हूँ और दानियाल खुद मेरी जिंदगी से निकल जाए। अब्बा की रूह को ये दुख नहीं देना चाहती थी कि उनकी बेटी ने उनका कहा नहीं माना। इसीलिए मैंने एक खतरनाक खेलना खेलना शुरू कर दिया, जहाँ मैं दानियाल के सब्र का हर रोज एक नया इम्तिहान लेती थी। दानियाल जब शाम को थका हारा घर लौटता तो मैं पानी का गिलास तक उसे नहीं देती थी, बल्कि उल्टा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती कि मुझे इस बदबूदार और छोटे घर में नहीं रहना। मुझे अच्छे कपड़े ला कर दो और मेरे खर्चात पूरे करो। दानियाल मेरी इन तमाम नाजायज मांगों और गुस्से को बहुत खामोशी से सुनता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता था, जो मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाता था। वो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था और ना ही कभी ऊंची आवाज में बात करता था। वो बस मेरी डिमांड्स को सुनकर अपने सर को झुका लेता
और अगले ही दिन वो कीमती चीजों को लाकर मेरे सामने मेज पर रख देता। उसका रवैया मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था कि एक मामूली इंसान इतनी आसानी से ये सब कैसे कर रहा है। लेकिन मेरा दिमाग रजा की मोहब्बत में इस हद तक अंधा हो चुका था कि मैं दानियाल की इस बेपनाह खलूस और सब्र के पीछे छुपी सच्चाई को देखने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। और मैं रोज एक नई हद पार कर रही थी। रजा की मोहब्बत का भूत मेरे सर पर इस हद तक सवार हो चुका था कि मैंने दानियाल को खुद से दूर करने और इसे तलाक पर मजबूर करने के लिए बिल्कुल नया और बड़ा मंसूबा बना लिया था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे रोज मरा के छोटे मोटे खर्चे या महंगे कपड़े मांगती रहूंगी तो शायद ये किसी न किसी तरह अपना पेट काट कर या कर्जा लेकर मेरी फरमाइश पूरी करता रहेगा। और इस तरह तो मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मुझे तो इससे भी जल्दी से जल्दी आजादी चाहिए थी ताकि मैं रजा के पास जा सकूं। इसलिए एक दिन जब दानियाल रात के वो देर से घर लौटा और हमेशा की तरह थका हारा सेन में रखी चारपाई पर बैठ गया, तो मैं किचन से निकलकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपने चेहरे पर जानबूझकर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत लाई और दानियाल से कहा, देखो दानियाल, मैं इस छोटे से किराए के घर में रहकर तंग आ चुकी हूँ और यहाँ मेरा दम घुटना है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी के साथ उठना बैठना है। वो सब जब सोने के महंगे जेवरात पहनकर आती हैं तो मुझे उनके सामने बहुत शर्मिंदगी होती है। इसलिए अब मैं ये गरीबाना जिंदगी मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मुझे इस घर में रखना है तो तुम्हें हर कीमत मुझे सोने की कीमती जेवरात लाकर देने होंगे। और मेरी शुरुआत अभी से होगी। मुझे इसी महीने सोने के भारी झुमके चाहिए। अगर तुम ये ला कर दे सकते हो तो ठीक, वरना तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। मैं ये बात इतने तकब्बुर और गुरूर से कही थी कि मुझे पूरा यकीन था कि दानियाल ये सुनते ही गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि एक मामूली नौकरी करने वाले इंसान के लिए हर महीने सोना खरीदना तो दूर की बात, तो उसका ख्वाब भी नहीं देख सकता। मैं दानियाल के चेहरे को देख रही थी कि अब उसका जब्त टूटेगा और वो मुझ पर चिल्लाएगा। लेकिन दानियाल ने मेरी इतनी बड़ी और नाजायज बात सुनकर भी अपने चेहरे का सुकून बर्बाद नहीं होने दिया। उसने बस गहरा सांस लिया और अपनी थकी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्से का एक निशान तक नहीं था। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, मरियम, अगर तुम्हें सोने के झुमके पसंद है और इन्हें पहनकर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें इससे महंगे सोने के झुमके लाकर दे दूंगा। दानियाल का ये जवाब मेरे लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। मैं हैरान रह गई कि इंसान किस मिट्टी का बना है जो इतनी बड़ी डिमांड्स पर भी उफ तक नहीं कर रहा। मैं गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे के अंदर आ गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुझे लगा वो सिर्फ मुझे चुप करवाने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक गरीब इंसान इतनी जल्दी सोना कहाँ से ला सकता है। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब इस महीने के आखिरी हफ्ते में दानियाल शाम को घर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा मखमल का डिब्बा था। उसने वो डिब्बा बहुत खामोशी से मेरे कमरे की मेज पर रखा और मुझसे कहा, मरियम, ये तुम्हारे सोने के झुमके हैं जो तुमने मांगे थे, तो मैंने देख लो, ये तुम्हारी पसंद है या नहीं। मैंने जैसे ही वो डिब्बा खोला तो मेरी आंखें खुले की खुली रह गई। उसके अंदर वाकई खालिस और चमकते हुए सोने के भारी झुमके मौजूद थे जो बहुत कीमती नजर आ रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली नौकरी और पेशेवर इंसान इतनी आसानी से सोना खरीद ले। मैंने झुमकों को देखा और फिर दानियाल को देखा जो बहुत सादगी से अपने सादा कपड़ों में खड़ा था। मेरे दिल में एकदम से शक पैदा हुआ कि ये इंसान जरूर कोई गलत काम कर रहा है या फिर ये कहीं से चोरी कर रहा है, क्योंकि एक आम ड्राइवर या मामूली मुलाजिम पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं कि वो हर महीने सोना खरीदने लगे। लेकिन मेरी अना इतनी बड़ी थी, मैं उससे कभी कुछ नहीं पूछा। मैंने वो झुमके हकारत से मेज पर पटक दिए और कहा कि चलो, शुक्र है तुमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन याद रखना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले महीने मुझे सोने का एक बड़ा सा हार भी चाहिए। दानियल ने मेरी अगली फरमाइश बहुत खामोशी से सुनी और बगैर कोई बहस के कमरे से बाहर चला गया। लेकिन अगले महीने उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। उसने वो डिब्बा मेरे सामने खोला। एक बड़ा डिब्बा, उसके अंदर सोने का एक बहुत ही खूबसूरत और भारी हार चमक रहा था। मैं ये देखकर बिल्कुल गूंगी हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दानियाल के पास ये जादू कहाँ से आ रहा है। वो बगैर किसी शिकायत के कोई भी उधार मांगे हर महीने मुझे इतनी बड़ी रकम पूरी कर रहा था। मेरा पूरा मंसूबा फेल होता नजर आ रहा था। मैं तो ये सब उसे तंग करने के लिए कर रही थी।
تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دے، لیکن وہ تو نہایت آسانی سے مجھے ہر مہینے سونے کے زیورات خرید کر دے رہا تھا۔ دانیال کا یہ صبر اور اس کی یہ آسانی میرے لیے ایک بہت بڑی پہیلی بن چکی تھی، لیکن میرا دماغ تو اس کی نفرت میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے دانیال کے اس بے پناہ خلوص کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے بس ہر وقت یہی لگتا تھا کہ انسان مجھے اپنے جال میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے، اور یہ میرے ابا کے احسان کا نام لے کر میری زندگی برباد کر رہا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ان پڑھ انسان ہے جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں دانیال کو ہر روز ذہنی اذیت دیتی تھی۔ جب وہ رات کو کام سے گھر آتا تو میں جان بوجھ کر برتن زور زور سے پٹکتی اور اس سے کہتی کہ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ دانیال میری اس تلخ باتوں کو سن کر بس ایک گہری سانس لیتا اور سین میں اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ جاتا۔ وہ چاند کو دیکھتا رہتا اور مجھے لگتا کہ وہ اپنی غریبی پر رو رہا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ وہ میرے ابا کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو نبھا رہا تھا جو اس نے اسپتال کے اس آخری وقت میں کیا تھا۔ دانیال کو معلوم تھا کہ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میں اس چھوٹے سے گھر میں خوش نہیں ہوں، لیکن وہ میرے ابا کے احسان کا قرض اتنے مخلص طریقے سے ادا کر رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری ذات کو میرے سامنے جھکا دیا تھا۔ میں روز نئے نئے زیورات مانگتی رہتی اور وہ بغیر ایک لفظ بولے مجھے ہر مہینے سونا لا کر دیتا۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا اور دانیال نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ مریم، تم اتنے زیورات کا کیا کرو گی یا تمہیں ان کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بس میری ہر خواہش کو اپنے ابا کے احسان کا بدلہ سمجھ کر پورا کرتا چلا گیا اور میں اپنے غرور کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ میرے ذہن میں تو بس ایک ہی بات سوار تھی کہ یہ زیورات میری آزادی کا ذریعہ بنیں گے۔ میں روزانہ یونیورسٹی جاتی ہوں تو سونے کی قیمتی زیورات پہن کر جاتی۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی رضا کا انتظار کر رہی تھی کہ رضا ہمیشہ کی طرح اپنے اسٹائل میں چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کی نظر جیسے ہی میرے گلے میں موجود سونے کی موٹی چین پر پڑی تو اس کی آنکھیں ایک دم سے چمک اٹھی۔ وہ بہت حیران ہوا اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، مریم، آج تو تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اور یہ جو ہار تم نے پہنا ہے یہ تو بہت ہی قیمتی ہے اور منفرد نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے خالص سونے کا ہے۔ تمہارے پاس اتنے قیمتی زیورات کہاں سے آ رہے ہیں؟ رضا کے چہرے پر ایک عجیب سا لالچ تھا، لیکن میں اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کا یہ لالچ نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا، رضا، یہ سارا سونا میری پھپھو نے مجھے دیا ہے، وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے۔ میرے ابا کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی ساری قیمتی اور سونے کے زیورات میرے حوالے کر دیے۔ وہ کہتی ہے کہ سب میرا ہے اور میں جب چاہوں ان کا استعمال کر سکتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر رضا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ محبت بھرا ہو گیا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت دھیمے لہجے میں کہنے لگا، مریم، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں اس چھوٹے اور پرانے علاقے میں مزید نہیں دیکھ سکتا جہاں تم اپنی پھپھو کے ساتھ رہ رہی ہو۔ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت لڑکی ہو، تمہیں کسی بڑے محل میں ہونا چاہیے۔ آفر دی تھی۔ اب میں میں یہی کہتا ہوں کہ تم وہ سب کو چھوڑو، اپنے کپڑے اور زیورات اپنے ساتھ اٹھاؤ، چوری چھپے میرے ساتھ اس فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ۔ میں وہاں چند دن ایک ساتھ ہم رہیں گے اور پھر میں بہت دھوم دھام سے تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ایک الگ دنیا بسا لیں گے۔ وہاں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور تم اپنی مرضی کی زندگی جیو گی۔ رضا کی یہ باتیں میرے کانوں میں کسی میٹھے شہد کی طرح رس گھول رہی تھی۔ مجھے لگا رضا واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور مجھے اس غریبی اور کڑہن کی زندگی سے نجات دلانا چاہتا ہے جو میں دانیال کے ساتھ گزار رہی تھی۔ رضا نے میری پٹی مجھے پڑھائی کہ تم بس ایک رات کا اندھیرا دیکھ کر اپنے ساتھ زیورات ایک بیگ میں ڈالنا اور گھر سے نکل آنا۔ میں اس کے جھانسے میں پوری طرح سے آ چکی تھی۔ میں نے رضا سے وعدہ کر لیا کہ میں بہت جلد ایسا ہی کروں گی اور وہ سارے زیورات لے کر اس کے پاس فلیٹ پر پہنچ جاؤں گی۔ رضا نے مجھے اپنے فلیٹ کا پتہ اور چابی بھی دے دی اور کہا کہ تم جب چاہو وہاں آ سکتی ہو۔ میں یونیورسٹی سے جب گھر واپس لوٹی تو میری دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی۔ میں اپنے کمرے میں الماری کھول کر دانیال کے دیے ان تمام سونے کے زیورات کو دیکھنے لگی جنہیں میں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ دانیال نے اپنی محنت کی کمائی سے یا جیسے بھی وہ پیسے لاتا تھا مجھے یہ سارا سونا لا کر دیا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے رتی برابر رحم یا محبت نہیں تھی۔
मैं बस यही सोच रही थी कि इन जेवरात को बेचकर मैं और रजा एक बहुत बड़ी और शानदार जिंदगी शुरू करेंगे। मैं दानियाल के इस छोटे से किराए के घर को और दानियाल की शक्ल को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी। रजा का असल चेहरा बहुत बदसूरत और लालची था, लेकिन मेरी पढ़ी लिखी अकल पर उस वक्त ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि मुझे एक शरीफ इंसान का खुलूस नजर ही नहीं आ रहा था और एक लुटेरे की झूठी बातें बहुत सच्ची लग रही थी। मैंने दिल ही दिल में पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि मैं किस तरह दानियाल के सोते ही यहाँ से भाग जाऊंगी और अपने अब्बा के सामने जाने वाली इस कसम को भी तोड़ दूंगी, क्योंकि अब मुझे दानियाल से तलाक की भी जरूरत नहीं थी। मैं उससे हमेशा के लिए दूर भाग जाना चाहती थी और रजा के साथ अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रही थी, जहाँ हर तरफ सिर्फ पैसा और अयाशी थी। आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैंने रात के पिछले पहर जब देखा कि दानियाल सहन में अपनी चारपाई पर गहरी नींद सो रहा है, तो मैंने बहुत आहिस्ता से अपने कमरे की अलमारी खोली और दानियाल को दिए हुए तमाम सोने के कीमती जेवरात निकाले और ने बहुत एहतियात से अपनी बैग में डाल दिया। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन मेरे सर पर रजा की मोहब्बत और दानियाल से आजादी का बोझ सवार था। मैंने बहुत दबे पांव कमरे से बाहर कदम रखा और दानियाल को देखा, जो दिन भर की थकन की वजह से गहरी नींद सोया हुआ था। मैंने एक बार भी उसे घर या दानियाल के खलूस के बारे में नहीं सोचा और चुपके से गली का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने रजा को मैसेज करके बता दिया था कि मैं उसके फ्लैट पर पहुंचने वाली हूँ। सड़क पर आकर मैंने एक टैक्सी ली और सीधे रजा के बताए हुए फ्लैट की तरफ रवाना हो गई। जब मैं उस फ्लैट के सामने पहुंची तो रात का सुनाटा बहुत गहरा हो चुका था। मैंने कांपते हाथों से रजा की दी हुई चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो वहां वो मंजर था जो मेरे वहमो गुमान और तसव्वुर में नहीं था। सामने हाल में रजा अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ तीन चार उबाश और बदचलन दोस्त भी बैठे थे। वहां शराब की बोतलें बिखरी थी और हर तरफ सिगरेट का धुआं फैला था। रजा एक मखाराना मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। मैंने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की और रजा से कहा, रजा, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं होगा और हम यहाँ अकेले रहेंगे। रजा ने मेरी बात सुनकर एक जोरदार कहका लगाया और कहने लगा, मरियम, तुम वाकई बहुत नादान और बेवकूफ लड़की हो। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम जैसी एक ड्राइवर की बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करूंगा? मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम सिर्फ इस सोने की कीमती जेवरात से मतलब था जो तुम्हारी पप्पो ने तुम्हें दिए थे। मेरे बाप ने गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। चलो अब जल्दी से वो बैग मेरे हवाले करो। रजा के ये अल्फाज सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रजा के दोस्त भी अपनी जगहों से उठे। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों में मेरे लिए बहुत गंदी और वहशियाना नजरें थी। रजा ने मेरे हाथ से वो बैग जोर से झपटा और उसके अंदर मौजूद सोने के जेवरात देखकर उसकी आंखें चमक उठी। मैंने रोते रोते रजा से कहा कि रजा, खुदा के लिए मुझे जाने तो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम पर भरोसा किया था। लेकिन रजा ने मुझे धक्का दे दिया और कहने लगा, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अब तुम हमारे पास रहोगी और जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी और मुझे उस वक्त दानियाल का वो छोटा सा किराए का घर दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रहा था। मैं पागलों की तरह रो रही थी और अपने अब्बा को याद कर रही थी कि उन्होंने मरते वक्त मुझे किसी नेक इंसान के हवाले किया था और मैं अपने गुरूर में आकर किस दलदल में कूद गई थी। रजा के दोस्त जैसे ही बदनीयती से मेरे करीब आने लगे, मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। तो ऐन उसी लम्हे एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। फ्लैट का मजबूत दरवाजा एक ही झटके में खुला और सामने दानियाल खड़ा था। दानियाल के चेहरे पर इस वक्त नरमी और सुकून बिल्कुल नहीं था जो मैं रोज घर में देखती थी, बल्कि उसकी आंखों में एक शेर जैसा गुस्सा और जलाल था। दानियाल को वहां देखकर रजा और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। रजा ने चिल्ला कर कहा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे है? लेकिन दानियाल ने कोई जवाब न दिया। वो एक चट्टान की तरह आगे बढ़ा। रजा के दोस्तों ने दानियाल पर हमला करने की कोशिश की। दानियाल ने अपनी जान पर खेल कर उन सबको मारना शुरू कर दिया। वो अकेला इन चारों गुंडों पर भारी पड़ रहा था। उसने रजा को गिरबान से पकड़ा और उसके मुंह पर इतने जोरदार थप्पड़ मारे कि रजा जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। दानियल ने मेज पर रखा मेरा जेवरात का बैग उठाया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस गंदे फ्लैट से बाहर निकाल आया।
मैं पूरे रास्ते खौफ और शर्मिंदगी से कांप रही थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। दानियाल मुझे लेकर वापस अपने उस छोटे से किराए के घर आए। जहां हम सेन में पहुंचे तो मुझे शर्मिंदगी के मारे में जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं दानियाल के सामने सामना कैसे करूं। दानियाल ने उस सोने के जेवरात का बैग मेरे सामने रखा और बहुत संजीदा लेकिन गहरी आवाज में मुझसे कहने लगा, मरियम, तुमने क्या सोचा था कि तुम रात के अंधेरे में चुपके से निकल जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे बहुत पहले से इल्म था कि तुम ये घर छोड़कर निकल रही हो, और वो भी इस आवारा रजा के लिए। और मुझे ये भी मालूम था कि तुम यूनिवर्सिटी में उससे मिलती हो। दानियल की ये बातें सुनकर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। मैंने रोते हुए दानियल की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें ये सब कुछ मालूम था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने मुझे जाने क्यों दिया? दानियल ने गहरा सांस लिया और कहने लगा, मरियम, अगर मैं चाहता तो तुम्हें घर में कैद कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपनी इन पढ़ी लिखी आंखों से उस रजा का असल और बदसूरत चेहरा खुद देखो, ताकि तुम्हारे दिल में उसका झूठा झूठा भूत हमेशा के लिए उतर जाए। मैंने तुम्हारे अब्बा से वादा किया था कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा, इसलिए मैं खामोशी से तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, ताकि तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से ना ढूंढना पड़े। दानियल की ये बातें सुनकर मेरा सारा गुरूर और पढ़ी लिखी होने का घमंड मिट्टी में मिल गया। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं अनपढ़ और मामूली समझकर हकारत कर रही थी, वो दरअसल किसी अजीम और मुखलिस इंसान था, जो मेरी हर बदतमीजी और धोखे को सिर्फ मेरे अब्बा के एहसान की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, और एक मुहाफिज की तरह मेरी इज्जत की हिफाजत कर रहा था। दानियल ने उस दिन के बाद से मुझसे खुद से कुछ न कहा, और उसका रवैया पहले की तरह मुझे बिल्कुल खामोश और संजीदा हो गया। उसने मुझे किसी बात पर कोई ताना नहीं दिया और ना ही कभी उस रात का जिक्र करके मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की। लेकिन मैं दानियाल की उस बेपनाह ज़र्फ के सामने अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने शर्मिंदगी से उसके सामने अपनी नजरें झुका ली, और जब भी वो घर आता तो मैं खौफ और एहतराम के मारे उसके सामने नहीं आती थी। धीरे धीरे मेरा दिल उससे मोहब्बत करने लगा था। मुझे लगता था कि उसके बगैर मेरे लिए जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस बात का एतराफ कर सकती। मैंने बस जैसे तैसे रो धो कर अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी इम्तिहान दिए, क्योंकि मेरा पढ़ाई में उस बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। इम्तिहान खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे घर में खाली बैठने की बजाय कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दानियाल से अब पर बहुत ज्यादा बोझ बन चुकी हूँ। वो एक मामूली नौकरी करने वाला इंसान था। मेरे अब्बा के एहसान का कर्ज उतारने के लिए उसने महीनों तक मेरी हर जायज नाजायज फरमाइश पूरी की थी। यहाँ तक कि मुझे तलाक ना देने के लिए उसने अपना पेट काट कर मुझे सोने के इतने कीमती जेवरात भी खरीद कर दिए थे। और मैं उसके पैसों पर मजीद ऐश नहीं करना चाहती थी, और ना ही उसके घर में मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहती थी। मैं उसके आगे बहुत शर्मिंदा थी। मैं चाहती थी कि नौकरी करके कुछ पैसे कमाऊं, ताकि दानियाल का ये सारा कर्ज किसी न किसी तरह उतार सकूं और उस पर अपना बोझ कम कर सकूं। इसलिए मैंने अखबारात में और इंटरनेट पर नौकरियों की तलाश शुरू कर दी। मैं रोजाना जॉब्स की इश्तहारात देखती, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई के मुताबिक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। उस दिन मैं परेशानी में बैठी थी कि मेरी एक पुरानी दोस्त का मुझे फोन आया। वो मेरी बहुत मुखलिस सहेली थी, और उसे मालूम था कि मैं इन दिनों नौकरी के लिए कितनी परेशान हूँ। उसने मुझसे कहा, मरियम, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी और नामूर मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ आजकल बहुत ही शानदार जॉब्स ऑफर हो रही है। वहाँ तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, और पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए बहुत जगह भी महफूज है। मेरी दोस्त ने मुझे उस कंपनी का पता और इंटरव्यू का वक्त बताया, और कहा कि तुम कल ही अपनी तमाम तलीमी कागजात लेकर वहां पहुंच जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपनी दोस्त का बहुत शुक्रिया अदा किया, और अगले दिन सुबह सवेरे तैयार होकर अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर रवाना हो गई। जब मैं उस कंपनी के बड़े से गेट के सामने पहुंची तो वहां की शान और शौकत और ऊंची इमारत देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो शहर की सबसे महंगी और बड़ी कंपनी थी, जहाँ सूट बूट पहने पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में उतर कर आ रहे थे। मैंने अपने दिल को संभाला और सोचा कि अल्लाह करे मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, ताकि दानियाल को कुछ बोझ हल्का हो सके। मैं अंदर दाखिल हुई तो मैनेजर ने मुझे एक बड़ी सी केबिन के बाहर बैठने को कहा।
जहाँ पहले से ही बहुत सी लड़कियां इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मैं भी उनके साथ एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद मैनेजर मरियम नाम की फाइल लेकर हॉल के कमरे की तरफ आया तो उसने मुझे इशारा किया कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। मैनेजर जैसे ही बॉस के बड़े केबिन के पास पहुंचा तो अंदर से किसी की बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैनेजर ने मुझे बाहर रुकने का इशारा किया और खुद दरवाजा तक थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकने लगा। दरवाजा आधा खुला था, जिसकी वजह से अंदर का पूरा मंजर और अंदर बैठे शख्स की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तजस्सुस के मारे जब उस आधे खुले दरवाजे से अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने उस आलीशान चमड़े की कुर्सी पर एक बहुत ही महंगा सूट पहने जो शख्स बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा वही शौहर दानियाल था, जिसे मैं अनपढ़ और मामूली इंसान समझती थी। उस वक्त किसी दूसरे मुल्क का पढ़ा लिखा बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। दानियाल अपने सामने खड़े कंपनी के सबसे बड़े ऑफिसर को बहुत रोकदार और अंग्रेजी जुबान में कुछ समझा रहा था। और फिर उसने उर्दू में मैनेजर की तरफ देखते बगैर कहा कि मरियम नाम की एक लड़की बाहर इंटरव्यू के लिए आई होगी। वो मेरी बीवी है। तुम उसे ये नौकरी दे दो और इसकी तनख्वाह भी मुझसे सबसे ज्यादा रखना। लेकिन याद रहे कि उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये कंपनी मेरी है और मैं उसका मालिक हूँ, क्योंकि बहुत वो खुददार लड़की है और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी एहसान के नीचे दबकर ये नौकरी करे। दानियाल की बातें सुनकर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। मेरी अपनी आंखें और कानों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं इस बड़े ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। दानियाल जो पिछले दरवाजे से निकलने ही वाला था, मैनेजर के साथ मुझे अचानक अंदर आते देख वहीं रुक गया। मुझे देखते ही दानियाल के माथे पर हैरानी की लकीरें पड़ गई। वो एक लम्हे के लिए परेशान हुआ, लेकिन वो फिर बहुत वक़्कार अंदाज में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही पुराना सुकून था जो मैं रोज अपने छोटे से घर में देखा करती थी। मैं अब मजीद खामोश रहना मुनासिब नहीं समझा और अपनी कांपती आवाज में फौरन उससे पूछा कि दानियाल, तुम कौन हो और यहाँ इस बड़ी कंपनी में क्यों बैठे हो? क्या तुम इस कंपनी के मालिक हो? मुझे तो जैसे इस सच्चाई पर यकीन ही नहीं आ रहा। दानियाल ने मेरी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और अपने मैनेजर और साथ खड़े दूसरे लोगों को हाथ के इशारे से कमरे से बाहर जाने को कहा। जब सब लोग बाहर चले गए और कमरे में सिर्फ मैं और दानियाल रह गए, तो उसने बहुत नरमी से मुझे अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं एक बेजान बुत की तरह कुर्सी पर बैठ गई, तो दानियाल भी अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। और फिर उसने बहुत आहिस्ता और संजीदा आवाज में मुझे अपनी जिंदगी की वो सबसे बड़ी सच्चाई बताना शुरू की, जिसमें मैं आज तक बिल्कुल बेखबर थी। दानियाल कहने लगा कि मरियम, तुम आज तक यही समझती रही कि मैं एक गरीब और अनपढ़ इंसान हूँ जिस पर तुम्हारे अब्बा ने एहसान किया था। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे अब्बा मेरे कोई जानने वाले नहीं थे, बल्कि वो मेरे जाती ड्राइवर थे। वो बरसों बाद हमारे खानदान के साथ मुखलिस रहे और उस दिन जब अस्पताल में उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं उस गाड़ी में उनके साथ ही मौजूद था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारी गाड़ी को हिट किया था और मौत बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। उस खौफनाक एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारे अब्बा ने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर धक्का दिया था और मुझे उस यकीनी मौत से बचा लिया था, जबकि इस कोशिश में उनकी अपनी जिंदगी खत्म हो गई थी। वो गाड़ी के अंदर बुरी तरह से फंस गए थे और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने आखिरी सांसें लेकर तुम्हारे अब्बा ने मरते वक्त मुझसे सिर्फ एक ही वादा मांगा था कि दानियाल, मेरी बेटी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी, तुम इसका हाथ थाम लेना और इसकी हिफाजत करना। और मैं अपने मोहसिन के इस बड़े एहसान को कभी नहीं भूल सकता था। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी थी, इसलिए मैं उनका एहसान चुकाने के लिए, उनकी रूह को सुकून देने के लिए अस्पताल के उस कमरे में तुमसे शादी करने को फौरन राजी हो गया। दानियाल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मरियम, शुरू में तो ये सिर्फ एक वादा था जो मैंने तुम्हारे अब्बा से किया था, लेकिन फिर शादी के बाद जब मैंने तुम्हारे उस छोटे से घर में लेकर आया और तुम्हारे साथ वक्त गुजारा तो मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई। मैं बहुत जल्द ये जान गया था कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और तुम्हें अपने लिए एक शानदार और पढ़ा लिखा शौहर चाहिए। इसलिए शायद मैं रोज रोज के बुरे रवैये और बदतमीजियों पर कभी नाराज नहीं होता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा गुस्सा एक मामूली और अनपढ़ शोहर के खिलाफ है जो तुम्हारी नजर में तुम्हारे मायार पर पूरा नहीं उतरता।
میں چاہتا تھا کہ تم کسی دباؤ یا احسان کے نیچے مت آؤ، لیکن دل سے مجھے اس رشتے کو قبول کرنا تھا۔ میں تمہاری محبت کو جیتنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نہ تو تمہیں کبھی اپنے اس امیری کے بارے میں بتایا اور نہ ہی زیادہ اپنے بارے میں کچھ ظاہر کیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اس لیے دور رکھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب تم خود مجھ سے محبت کرنے لگو گی اور اس رشتے کو اپنا لو گی، میں تمہیں خود اپنی سچائی بھی بتا دوں گا اور تمہیں اپنے اس بڑے گھر میں لے جاؤں گا جہاں تمہاری زندگی کا ہر خواب پورا ہو سکے گا۔ دانیال کی باتیں سن کر میرا پورا وجود شرمندگی کی آگ میں جلنے لگا۔ میں جو اب تک اپنی انا کے اندھیرے میں غرق تھی اور دانیال کو حقیر سمجھتی تھی، آج میرا ضمیر پوری طرح جاگ چکا تھا اور مجھے اپنی ہر ایک بدتمیزی پر اتنی ندامت ہو رہی تھی کہ میرے پاس دانیال سے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ میرے روتے ہوئے دانیال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ دانیال، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے پڑھے لکھے ہونے کے غرور میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے ایک لٹیرے کی جھوٹی باتیں سچی لگی اور تمہارا مخلص دل نظر ہی نہ آیا۔ دانیال اپنی کرسی سے اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر بہت پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، مریم، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابا کا قرض آج پورا ہو گیا اور مجھے میری مریم واپس مل گئی۔ اب ہم اس چھوٹے گھر کو چھوڑ کر اپنے اصل گھر چلیں گے جہاں تمہارا ہر خواب میرا خواب ہوگا۔ میں نے دانیال کا ہاتھ تھام لیا اور مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کا سب سے بڑا سکون کسی امیر یا غریب میں نہیں بلکہ ایک مخلص انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اور آج میرے ابا کی روح بھی آسمان پر بہت خوش ہوگی